چیف جسٹس جاتے جاتے بڑا فیصلہ سنانے کو تیار۔ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اعجاز الحسن نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ پارلیمنٹ کے پاس کردہ نیب ترامیم برقرار رہیں گی یا نہیں، نظریں سپریم کورٹ پر لگ گئیں۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلہ 5 ستمبر کو محفوظ کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کو چیلنج کیا کی درخواست پر 53 سماعت کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ نیوز ذیشان سید سے۔ جی ذیشان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی آخری دن اور بڑا فیصلہ، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ریلیف ملے گا یا نہیں۔ پی ڈی ایم حکومت میں نیب ترامیم کی گئی تھی اور اس کو چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ 2 جولائی 2022 کو یہ ترامیم چیلنج کیے گئے تھے۔ 19 جولائی 2022 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی بینچ نے اس پہ پہلی سماعت کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اس پر ٹوٹل 53 سماعتیں کی اور آج 5 ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج یہ بڑا فیصلہ سنانے جا رہا ہے۔ 12:30 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ تاہم اس میں جو درخواست گزار تھے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، جس پر روز اول سے جسٹس منصور علی شاہ کا سوال یہ تھا کہ کہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی۔ درخواست گزار کی جانب سے چیف جسٹس جاتے جاتے بڑا فیصلہ سنانے کو تیار ہے۔ نیب ترامیم میں برقرار رہیں گی یا نہیں، فیصلہ آج تھوڑی دیر تک سنا دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں چیف جسٹس جاتے جاتے بڑا فیصلہ سنانے کو تیار ہیں۔ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ کچھ دیر بعد آ جائے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا۔ جسٹس منصور اور جسٹس اعجاز الحسن کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ پارلیمنٹ کی پاس کردہ نیب ترامیم برقرار رہیں گی یا نہیں، نظریں سپریم کورٹ پر لگ گئی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں فیصلہ آ جائے گا۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلہ 5 ستمبر کو محفوظ کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کو چیلنج کیا تھا اور اس حوالے سے درخواستوں پر 53 سماعتیں کی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات ذیشان سید ہمیں بتا رہے تھے۔ جی ذیشان، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج چونکہ بڑا فیصلہ ہے اور ساری جو پاکستانی قوم کی نظری بھی ہے، کیونکہ ایک پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، ایک ترامیم کی گئی تھی نیب ترامیم اور اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ آج اس پر فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اس نیب ترامیم کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے روز اول سے آج تک یہی سوال تھا کہ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا نہیں کہ کہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ بھی اعتراض تھا کہ اس کیس کو یا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد سنا جائے یا اس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ دونوں اعتراضات ان کی اپنی جگہ اور برقرار ہی رہے، کیونکہ نہ اس کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کہ اس پہ اپریل میں حکم امتناعی جاری کیا گیا تھا، آج تک اس کا فیصلہ نہ ہو سکا اور جو یہ نیب ترمیمی بل ہے، نیب ترمیمی بل کا فیصلہ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد آئے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے دونوں اعتراضات جو تھے، جو فل کورٹ کے تھے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے تھے، دونوں پہ جو ہے وہ اعتراضات ہی رہے، لیکن پارلیمنٹ کے جو ترمیم شدہ امینڈمنٹ تھے اس پہ جب چیلنج کیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے کچھ چیزوں کو کہا تھا کہ یہ ترامیم واضح ہے، جیسے کہ نیب ترامیم کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ ذیشان سید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چیف جسٹس پاکستان کا آج آخری ورکنگ ڈے ہے، کل چھٹی، پرسوں ریٹائر ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں عدالتی فیصلوں پر تنقید ضرور کریں، جب جج پر تنقید کریں تو یقینی بنائیں کہ وہ سچے حقائق پر مبنی ہو۔ اللہ کی خوشنودی کو ذہن میں رکھ کر کام کیا۔ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے متحرک رکھا۔ چیف جسٹس نے وکلا کو آخری دن بھی گڈ ٹو سی یو بولا۔ وکلا کی جانب سے چیف جسٹس کے صبر و تحمل کی تعریف۔ نامزد چیف جسٹس قائد فائز عیسیٰ پیر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ پرویز الہی کو ایک طرف ریلیف، دوسری طرف تکلیف۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا رہا کرنے کا حکم۔ دوسری طرف اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ ایف آئی آر میں مونس الہی، راسخ الہی سمیت دیگر فیملی ممبرز کے بھی نامزد کیا گیا ہے۔
चौधरी परवेज इलाही के सितारे गर्दिश में, साबिक वजीर आला पंजाब को अदालत से रिलीफ मिल गया। जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का रिहा करने का हुक्म। अदालत ने रिमांड लिए। चौधरी परवेज इलाही से दौरान रिमांड कुछ बरामद नहीं हुआ। FIR में वो नामजद नहीं है। ATC ने 20,000 रुपए के मचलकों के इवज परवेज इलाही की जमानत मंजूर की। दूसरी तरफ परवेज इलाही की मुश्किलात में मजीद इजाफा। साबिक वजीर आला के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब में एक और मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गई। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही की रिहाई की सूरत में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ लाहौर मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तिगियों का मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में मुनिस इलाही, रासिख इलाही समेत दीगर फैमिली मेंबर्स भी नामजद हैं। PIA का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत की तरफ से ताहाल PIA की माली इमदाद न जारी हो सकी। लीजिंग कंपनियों को अदायगी और ईंधन के हुसूल में शदीद मुश्किलात। 15 तैयारे बदस्तूर ग्राउंड। मुतअद्दिद मुलाजिमीन में ताहाल अगस्त की तनख्वाह से महरूम हैं। तफसीलात जान लेते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। PIA का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। हुकूमत की तरफ से ताहाल PIA की माली इमदाद न जारी हो सकी। लीजिंग कंपनियों को अदायगी और ईंधन के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। 15 तैयारे बदस्तूर ग्राउंड कर दिए गए हैं। मुतअद्दिद मुलाजिमीन में ताहाल अगस्त की तनख्वाह से भी महरूम रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। PIA माली बहरान का शिकार हो गया है। PIA का माली बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। हुकूमत की तरफ से ताहाल PIA की माली इमदाद कोई जारी न की जा सकी। लीजिंग कंपनियों को अदायगी और ईंधन के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। 15 तैयारे बदस्तूर ग्राउंड कर दिए गए हैं। मुतअद्दिद मुलाजिमीन ताहाल अगस्त की तनख्वाह से महरूम हैं। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल और बिजली चोरी के तदारुक के लिए आज इजलास तलब कर लिया। दोनों इजलास अलग अलग मुनक्किद हुए। मुआशी सूरत हाल बिलखुसूस डॉलर चीनी की स्मगलिंग रोकने के मामलात पर गौर होगा। अफगान बॉर्डर की बंदिश, अफगानिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में अहम फैसले मुतवक्की हैं। बिजली चोरी रोकने और एयरलाइंस पर कंट्रोल के लिए इक़दामात पर भी गौर होगा। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल और बिजली चोरी के तदारुक के लिए आज इजलास तलब कर लिया है। दोनों इजलास अलग अलग मुनक्किद होंगे। मुआशी सूरत हाल बिलखुसूस डॉलर चीनी की स्मगलिंग रोकने के मामलात पर गौर होगा। अफगान बॉर्डर की बंदिश, अफगानिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में अहम फैसले मुतवक्के हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी नियो न्यूज़ तारिक अजीज़ से। जी तारिक अजीज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने आज 2 इजलास तलब किए। एक बिजली के इशू के ऊपर है। बिजली अभी तक जो है बिजली की चोरी और लाइन लाइसेंस रोकने के लिए कोई हिकमत अमली वाज़ेह नहीं हो सकी, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ साहब का बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई। आज उन्होंने इस सिलसिले में एक आला सतह इजलास बुलाया है, जिसपे वो इस तजावीज़ भी लेंगे, इसको ब्रीफिंग भी दी जाएगी और ये ऑलरेडी क्रैक डाउन हो चुका है बिजली चोरों के खिलाफ, इसको मज़ीद तेजी लेके आई जाएगी। दूसरा इजलास होगा मुआशी सूरत हाल के ऊपर होगा। डॉलर स्मगल हो रहा है, गंदम हवाई बाहर जा रही है और चीनी स्मगलिंग अफगानिस्तान तक जा रही है। इस वक्त अफगानिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर तो खोल दिया गया है, लेकिन उसके लिए आगे से क्या छोटी ली जाएगी, अफगान हुकूमत से छोटी ली जाएगी, उनके साथ क्या बात की, तो ये इस बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब इजलास करेंगे। बॉर्डर खोल दिया गया, तजारत का आगाज कर दिया गया है। ठीक है तारिक अजीज़, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चीनी माफियाज की शामत। कराची में रेंजर्स का 2 गोदामों पर छापा। चीनी की 1,40,000 बोरियां बरामद कर ली गई। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है बरामद चीनी की मालियत तकरीबन 1 अरब से ज़ायद बनती है, जो मुबैना तौर पर बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल की जानी थी। उधर डहर में भी इंतजामिया इन एक्शन। ज़ख़ीरा की गई चीनी की 3,000 बोरियां पकड़ी गईं। चीनी से भरा एक ट्रेलर भी तहवील में ले लिया गया। सरगोदा में ज़िलाई इंतजामिया की कार्रवाई हुई। 2,000 से ज़ायद की चीनी की बोरियां बरामद कर ली गई। 2 गोदाम भी सील कर दिए गए। कशीदगी के बायस 9 रोज़ से बंद पाक अफगान बॉर्डर तुरखम आज खोल दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड भी शुरू हो गई। पाकिस्तान की तरफ से पहला ट्रक अफगानिस्तान में, जबकि अफगानिस्तान से पहला कंटेनर पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। हमारे रिपोर्टर शाहिद खान पाक अफगान बॉर्डर तुरखम पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तुरखम बॉर्डर के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से ट्रेड की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजरती है और मेरे सामने बिल्कुल जो है गेट जो है वहाँ से पहली गाड़ी जो है वो सरहद अबूर कर चुकी है और अफ़गानिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुकी है।
तकरीबन 9 दिन तक बॉर्डर जो था वो बंद रहा, जिसकी वजह से जहाँ पर आम शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो वहीं पर जो कारोबार है जो कंटेनर जाते हैं अफ़गानिस्तान या वहाँ उस तरफ से आते हैं, जिनमें अशय खुर्दनोश भी है और उसके अलावा दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो सामान इन कंटेनरों में भरा होता है। और वो तकरीबन 8-9 दिन से जो है वो इस इंतज़ार में थे कि कब बॉर्डर खुलेगा और ये गाड़ियाँ जो है वो पार कर जाएंगे। तो आज ये वो दिन आ गया कि बॉर्डर खुल गया है और गाड़ियों की यहाँ से जो जाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पहली गाड़ी जो है वो दाखिल हो चुकी है अफ़गानिस्तान की हदूद में, जबकि बाकी जो है उसका क्लियरेंस का अमल कई गाड़ियों का हो चुका है और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सामान है उसमें चीनी भी शामिल है, उसमें अशय खुर्दनोश की दूसरी अशिया भी है जो कि सरहद पार जो है वो जाएंगी। अहम खबर शामिल करें, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कोयटा के करीब वली तंगी के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, जबकि एक सिपाही शदीद जख्मी हो गया। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जी जावेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखें, ये 14 सितंबर को वाक़या हुआ है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ है। वली तंगी कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया था, जिसमें शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान 3 दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल किया गया है, जबकि बहादुरी से लड़ते हुए हमारे पाक फौज के एक सूबेदार कैसर रहीम ने जो है वो जाम शहादत नोश किया है। ISPR का ये कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म है, जबकि बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे लिए जो है वो अज़म को मजबूत बनाती हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला बड़ा फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कलअदम करार दिया था। आपको बता रहे हैं, नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला बड़ा फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। 18 सितंबर को जो है केस की समाअत होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और अटार्नी जनरल वफाकी सेक्रेटरी कानून समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा और सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक पर हुक्म इम्तिनाई जारी कर चुका है और मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। और ये भी बता दो कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाने के बाद बेंच जो है वो तश्कील देंगी। जी, फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। ज़ीशान सैयद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची के इलाके बफर जोन में फायरिंग से बच्ची की हलाकत का ये केस है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम को मकामी अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार मुलजिम का कहना है, ड्यूटी पर था, 2 डकैत आए और मेरी तरफ अपने हथियार किए। मैंने अपने हथियार से डकैतों को निशाना बनाया। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। गोली कैसे लगी मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उधर मैं होटल में बैठा हुआ था, होटल में ही ड्यूटी थी मेरी। जब होटल के अंदर ड्यूटी थी तो मेरी ड्यूटी उस टाइम में नाश्ता कर रहा था। अंदर नाश्ता कर रहा था तो बाहर जैसे साइड में क्लाइंट बैठे हुए थे तो 2 किलो टोटल लूट लिया था उन्होंने। अब आ रहे थे मेरे सेट के ऊपर, तो मेरा सेट बाहर के अंदर आया, मेरे को उठाया तो डकैत आ गए। तो मैं जैसे बाहर निकला तो उन्होंने मेरे सामने पिस्टल किया। तो मैंने अपने डर से जान बचाने से मैंने उनको सीधा फायर किया है। उसके बाद जब वो फायर बोलते हैं तो क्या है क्या नहीं है वो खुदा को पता है। उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं है तो मैंने किसी को जानबूझ के फायर मारा है या नहीं मारा, वो अल्लाह ही। बफर जोन में फायरिंग से बच्ची की हलाकत के केस के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जुनैद शाह से। जी जुनैद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए बफर जोन में अंधी गोली से बच्ची के जहाँ बहक होने का ये केस था जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती की अदालत में। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को पेश किया, जबकि पुलिस की जानिब से मुलजिम का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा की गई। ताहम अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। ठीक है जुनैद शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सेंट्रल जेल पेशावर में कैदियों के पास स्मार्टफोन्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। मोबाइल फ़ोन से जेल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। जेल इंतज़ामिया ने भी कैदियों के इस मोबाइल फ़ोन के उनके पास मौजूदगी होने की तस्दीक कर दी है। सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक जेल में मोबाइल लोकेटर्स हैं, न ही जैमर्स नस्ब किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद आलमज़ेब से। जी आलमज़ेब, बताइएगा। जी ये बिल्कुल, ये सेंट्रल जेल पेशावर में कैदियों के पास स्मार्टफोन मोबाइल के मौजूदगी होने का इंकशाफ हुआ है। सुपरिटेंडेंट जेल ने कैदियों से मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। मोबाइल फ़ोन से सेंट्रल जेल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की कर जाने लगे हैं। इस हवाले से सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद वसीम का कहना है कि 2 माह पहले 40 संभालिया जेल के मामला ठीक करने का टास्क सौंपा गया है। जेल में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी के बावजूद शिकायत मिल रही है। 4000 कैदी है। जेल की बहुत बड़ी इन आउट भी है और इससे अलावा जो है ना रोजाना 300-400 कैदी मुख्तलिफ अदालतों में जाते हैं। सेंट्रल जेल में मोबाइल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बरामद किया जाए। और उसको अफसोस की बात ये भी है कि जैमर भी जेल में रूटीन के मुताबिक नहीं है। सर्च ऑपरेशन जो है अब भी जारी है। जी ठीक है, और आलमज़ेब हमें अपडेट कर रहे थे, ऑपरेशन अब भी जारी है, शुक्रिया आपका। अब बात करें एशिया कप के हवाले से। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के अहम मैच में दिफाई चैंपियन श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी, फाइनल में दाखिल हो गया है। शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स का टूर्नामेंट में सफ़र ख़त्म हो गया है। सोशल मीडिया पर फैंस के ट्वीट भी सामने आ गए हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। ये फैसला हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो अलॉन्ग विद ऑल 4 provinces and its LEA's leadership वो जॉइंटली बैठ के एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करे और ये स्ट्रैटेजी एटलीस्ट उस स्टेट का जो केटेगरी गवर्नमेंट का है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अपना एक लोगों में शायद ये तासुर भी जा रहा था कि प्रोबेबली ये कोई 1 हफ्ते की ड्राइव है, 2 हफ्ते की ड्राइव है। ये मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट फॉर अ वीक और 2। ये इस स्टेंट के लिए जो कि हमारा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और वो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन उसकी इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ पाकिस्तान के साथ जुड़ गई। और विद इन लास्ट 10 डेज जिस तरह फॉरेक्स रिजर्व्स पे, एक्सचेंज रेट पे, इन्फ्लेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की भी एक हद तक शायद वो इतनी इफेक्टिव ना हो, इसको मज़ीद इफेक्टिव होने की ज़रूरत है, लेकिन इनिशिएशन ज़रूर हो गई है कि वहाँ पे रिकवरी के हवाले से भी परसुएंस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो नज़र आ रही है। पहले तो एक इनर्शिया था, एक लेग्जिटी थी, हर एक समझता था कि ये काम पता नहीं किसका है किसका नहीं है, देयर वाज नो सेंस ऑफ ओनरशिप। ये ट्रेंड मेरे ख्याल में इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है और इसके रिवर्सल के लिए वी हैव एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और उसमें हमारे बड़े केपेबल सिविल सर्वेंट्स मौजूद हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं। ऑफ कोर्स मिलिट्री इज़ वन ऑफ द डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन दिस कंट्री हैज़ और उसके एज अ टूल हम जहाँ जहाँ पे गवर्नेंस में हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी एप्लीकेशन की, उसकी एफिकेसी के लिए जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हम चाहते हैं उसका हम इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। लेकिन इन द लॉन्ग रन जो सलूशन पाकिस्तान के गवर्नेंस के चैलेंजेस का है वो ये है कि जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते जाएं। वो परफॉर्मेंस जब बेहतर होगी तो जो एक्स्ट्रा स्पेस में डिलीवरेबल दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की आ रही है वो खुद ब खुद कम होती जाएगी। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि वहाँ पे भी कोई इंटेंशन नहीं है कि दूसरों की स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाए। इंटेंशन इज ऑलवेज
کہ آپ کے جو فنکشنالٹی آف گورننس ہے وہ قائم رہے. ایسے نہ ہو کہ آپ ڈسٹوپیا یا ڈس فنکشنل سچویشن کی طرف چلے جائیں. تو ہم کوئی یوٹوپین گورننس ماڈل کی طرف بھی آل آف اے سڈن نہیں جانا چاہ رہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو فنکشنالٹی آف دا اسٹیٹ ہے وہ ریلیٹیولی نارمل رہے. اور اس سلسلے میں آج کی میٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائل سٹون ہے. ایک تو جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز گورننس ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور ایٹیٹیوڈ کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہاں پہ اگر اسکاسٹی آف ریسورس ہو اس کو بھی فل ان کیا جا سکتا ہے, اس گیپ کو, کہ بعض اوقات اگر آپ کی اپروچ ٹھیک ہو جائے. 8-9-10 دن سے مجھے پروونسز سے آئی ریسیو لاٹ آف گڈ نیوز, all 4 provinces. I mean, hats off to the chief secretaries, the IG police of all the provinces. جس طریقے سے ہورڈنگ پہ خصوصی طور پہ آپ لوگوں نے کام کیا ہے. بلوچستان اور کے پی میں اسمگلنگ, اینٹی اسمگلنگ ایکٹیویٹی پہ جو ویجیلنس نظر آ رہی ہے, آئی بی کی بڑی ویزیبل پریزنس اور انٹرونشن بہت ایریاز میں ہمیں نظر آ رہی ہے. سو دیز آر دا ایریاز جہاں پہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نظر مزید بھی آنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آرگنائزیشن ہمارے ایز اے کاؤنٹر پارٹ اس گورننس کے گیپ کو فل کرنا چاہیے. ہماری اپنی ڈگنیٹی, احترام اور عزت اس میں ہے کہ ہم خود اس فنکشنالٹی کی طرف مزید اپنی پرفارمنس بہتر کریں. جو پرفارمنس بہتر ہوتی ہے تو آپ کا احترام, آپ کی ریٹ, آپ کے امیجری, آپ کی برانڈنگ وہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اور یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے تحت ہوگا. چیف منسٹر سندھ ہمارے ساتھ زوم پر کنیکٹڈ ہیں. لیٹس اسٹارٹ. انٹیریئر منسٹر صاحب آپ لیڈ لیں, اور ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اور جو تھوڑا سا فیوچر میں اگر کہیں پر کوئی پلاننگ ایگزسٹ کر رہی ہے پروونس وائز اسٹارٹ.